وزیر اعظم کا آج دورہ چکوال، شہر میں پہلی یونیورسٹی کا افتتاح کریں گے۔ لاء کالج اور 500 بیڈز کے اسپتال کا سنگ بنیاد بھی شیڈیول۔ عمران خان سینٹر آف ایکسیلنس اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ عمران خان گھبرانے والے نہیں، ڈٹ جانے والے لیڈر ہیں۔ حکومت مضبوط اور مستحکم، لانگ مارچ اور جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ملک کی ترقی کو ریورس گیئر لگانے کی سازشیں کرنے والوں کو ناکام بنائیں گے۔ گورنر پنجاب کی وفود سے گفتگو۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کی روشنی میں استعفے جمع کرا دیے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ مردم شماری کے نتائج کو سب نے مسترد کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کمزور وفاقی حکومت کبھی نہیں آئی۔ ایم کیو ایم حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں چلی جائے۔ متحدہ والے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نہ ہو تو وہ پارلیمنٹ چل نہیں سکتی۔ بھئی ڈائیلاگ کے بغیر نہیں کام چل سکتا۔ اس ڈائیلاگ نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ خود حکومت کو پہنچ رہا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رک سکتا۔ شہباز صاحب سے میرا ایک لمبے عرصے سے رابطہ بھی ہے۔ انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ کا چلنا ناممکن۔ بات چیت نہ ہونے کا زیادہ نقصان حکومت کو ہو رہا ہے۔ سیاست ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ محمد علی دورانی کی پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو۔ استعفے جو ہیں وہ جو پی ڈی ایم کی ہماری موومنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور جب وہ فیصلہ ہوگا جس دن وہاں پہ ٹینڈر کرنے ہیں تو وہاں پہ ٹینڈر بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر وہ ڈیلے ہو تو پھر یہ جو پروسیس ہو، سینٹ کا پروسیس ہو یا جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اس کا پروسیس ہو تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ضمنی انتخابات کے بعد سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لینے کا اندیا۔ جب تک پی ڈی ایم قیادت استعفوں کا فیصلہ نہیں کرتی، پیپلز پارٹی میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کی دنیا نیوز ہیڈ آفس کے دورہ کے موقع پر گفتگو۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی، مزید 63 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل۔ 24 گھنٹے کے دوران 2260 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 4,69,482 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 39,177 تک پہنچ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی رفتار سست۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، 10 پروازیں منسوخ، 20 تاخیر کا شکار۔ ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی تاخیر۔ ملتان کی عدالتوں میں زیر التوا کیسز میں اضافہ، سائرین پریشان۔ تاخیر کا شکار ہونے والے مقدمات کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ کسی کے گھر پر قبضہ تو کسی نے زرعی زمین ہتھیا لی۔ کیسز کی بروقت سنوائی نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کبھی کرونا آ گیا، کبھی جج کے تبادلے ہو گئے، کیس ٹرانسفر ہو گیا، کیس کسی دوسری عدالت میں بھیج دیا، یہ چکر چل رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ سائلین یہاں تنگ ہو رہے ہیں، ان کے جو مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، انہیں چاہیے کہ ان کے مسئلے مسائل حل کریں۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ ایمرجنسی بھی کام نہ آئی، سرکاری اسپتالوں کی حالت تبدیل نہ ہو سکی۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں کا رش، لواحقین پریشان۔ نئے اسپتال بنائے جائیں، عوام کا مطالبہ۔ حکومت کو چاہیے کہ مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں سہولیات بھی بڑھا دے، بلکہ نئے ہسپتال بھی بنا دے تاکہ عوام کو
फ़ायदा हो। हॉस्पिटल्स की जो है वो भी उसकी तादाद बढ़ा दी जाए, या मौजूदा जो हॉस्पिटल्स है, टीचिंग हॉस्पिटल्स है, जिस तरह MTI है, तो उसमें नए वार्ड बनाए। मैं आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज चकवाल का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहां पे मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान चकवाल में पहली यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे और 500 बेड्स के अस्पताल का संगे बुनियाद भी शेड्यूल्ड है। इमरान खान चकवाल के पहले लॉ कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखेंगे और साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज का दिन चकवाल में गुजारेंगे। यहाँ पे उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का इफ्तिताह करना है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शेड्यूल में 500 बेड्स के अस्पताल का संगे बुनियाद भी शामिल है। इमरान खान चकवाल में पहले लॉ कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा आज चकवाल में ही अपनी मशरूफियत के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान में जैतून की पैदावार पर मस्बत नताइज मिलना शुरू हो गए हैं। चकवाल में 840 बागात में 12 लाख दरख्त लगाए गए हैं। जैतून की पैदावार से मईशत पर क्या असरात होंगे, बता रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे उमर जट। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल में और आज वज़ीर आज़म इमरान खान चकवाल का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं जिनका वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को आज चकवाल में मौजूद एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी तकारीर में मुख्तलिफ मकामात पर ऑलिव की जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से बात कर चुके हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये ऑलिव की प्रोडक्शन पाकिस्तान में जो की जा रही है उस पर ना सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं बल्कि उसके मस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, हम उनसे बात करते हैं। अगर हम जैतून की इंपोर्ट देखें तो इस टाइम 4000 टन जैतून का तेल इंपोर्ट हो रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है, जो एक रिसर्च बेस्ड इनिशिएटिव है, ये इस पूरे खित्ते की तकदीर को बदल सकता है। इसमें जो लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है और एक हम अपनी कौम को एक हेल्दी डाइट की तरफ, जो है हेल्दी ऑयल की तरफ ला सकते हैं, जो ना सिर्फ उनके रोज़गार का बायस बन सकता है बल्कि हमारा जो माहौल है, जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, तो ऑलिव चूँकि ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, ये एवर ग्रीन ट्री है, तो यहाँ पोठोहार में चूँकि कटाव का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उस मसले को भी हमें पायदार बुनियादों पर हल करने का मदद मिलेगा। और इनका ये भी बताना है कि तकरीबन इनका जो टारगेट है आइंदा साल वो 86,000 एकड़ पर इस ऑलिव की जो प्रोडक्शन है उसको लेकर जाना है। ये तफसीलात थी जो हमें यहाँ पर आकर मालूम है और इसी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ भी किया जाएगा। जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बैकडोर से आए हुए विफाकी वज़रा अपनी वजारतों की फिक्र करेंगे। हम लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, क्रिकेट खेलने नहीं आए। वो घड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सूबाई असम्बली सिंध और कौमी असम्बली से सिंध के जो भी मेंबरान हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने इस्तीफ़े जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था बिलावल हाउस में उनके पास जमा करा दिए। अब वो पार्टी लीडरशिप की मर्ज़ी कि उनको कब, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करें। हमें सारी चीज़ें जहन में रखनी है। सेनेट के हैं, बाई इलेक्शंस हो रही हैं, हमने उनमें पार्टिसिपेट इसलिए करना कि मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं ना, जो बैकडोर से आए, जो कभी भी काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते थे और वो वफाकी वजीर बन गए, उनको अपनी नौकरियों की परेशानी है। मैं जो हूँ ना लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ, विकेट पे खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। सियासत के मैदान से आपको अपडेट करते हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कुछ देर में मोटरवे के जरिए आज सिंध रवाना होंगी। नून लीग की नायब सदर सखर में आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी और लीगी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है। और कल गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उन्हें वहाँ में जलसे में शिरकत करनी है। जी, नुमाइंदा लाहौर इखलाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे इनके शेड्यूल की तफसीलात जान लेते हैं। जी इखलाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से जाती उमरा से बजरिया मोटरवे सकर रवाना होंगी। सुबह 9 बजे उन्होंने यहाँ से रवाना होना था, लेकिन चूंकि धुंध की वजह से मोटरवे बंद थी, इस वजह से ये तखीर हुई है। अब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो किसी भी वक्त जो है वो जाती उमरा से जो है सकर के लिए रवाना होंगी, जहाँ पर वो सकर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जबकि मरियम नवाज जो है वो सिंध के लीगी रहनुमाओं से खुसूसी मुलाकात करेंगी, जबकि वो कल खुसूसी दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब में शिरकत करेंगी, जहां पर वो
मोहतरमा बेनज़ीर की 13वीं बरसी के जलसे से खिताब भी करेंगी। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज जो है वो किसी भी वक्त जो है वो जाती उम्रा से रवाना होने के लिए तैयार है। उनका कानवाई जो है वो बिल्कुल तैयार कर दिया गया है और वो किसी भी वक्त यहाँ से रवाना हो जाएंगी। जी शुक्रिया इखलाक अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आजम घबराने वाले नहीं, डट जाने वाले लीडर हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी गुजर जाएंगे, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम है, लॉन्ग मार्च और जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद तफसीलात ले लेते हैं लाहौर से लियाकत अंसारी से। लियाकत, क्या कहना था गवर्नर पंजाब का? बिल्कुल, गवर्नर पंजाब से मोहम्मद सरवर ने अपोजिशन की जो तहरीक है उस पर अपने रद्द अमल में वाज़ेह तौर पर अपोजिशन को पैगाम दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान घबराने वाले नहीं हैं, वो डट जाने वाले लीडर हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सब गुजर जाएंगे, लेकिन अपोजिशन की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, बल्कि इलेक्शन जो है वो 2023 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम और लॉन्ग मार्च और जलसों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नर पंजाब ने वाज़ेह किया कि मुल्क की तरक्की को जो वर्क ये लाने वाले लोग जो है उनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अवाम जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं और हुकूमती बयानियां जो है वो अवाम में पजीराई इख्तियार कर रहा है, जबकि अपोजिशन के बयानियों को अवाम जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मौजूदा हुकूमत ने अदारों में सियासी मुदाखलत को खत्म किया और आज मुआशी और सफारती महाज पर पाकिस्तान कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 30 सालों में पहली बार पंजाब में इंडस्ट्री मुकम्मल बहाल हो चुकी है और पाकिस्तान मुआशी सिमत समेत हर शोबे में कामयाबियां जो है वो समेट रहा है। जी शुक्रिया लियाकत अंसारी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान ये कहती हैं कि PDM का शराजा बिखरने के करीब है। जाली राजकुमारी, शहजादा और मौलाना में इट खड़के का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा इस्तीफ़ों का शोशा भी इनके गले की हड्डी बन चुका है। अब ये अनासर इस्तीफ़े निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। जी, फिरदौस आशिकावान की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि PDM का शराजा बिखरने के करीब है, इस्तीफ़ों का शोशा भी उनके गले की हड्डी बन चुका है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मरदमशुमारी के नताइज को सब ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कमज़ोर वफाकी हुकूमत कभी नहीं आई। उन्होंने कहा कि MQM को हुकूमत छोड़कर फौरी तौर पे अपोजिशन के बेंचेस पे बैठना चाहिए। मुत्तहिदा वाले अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 2017 में 18 सालों के बाद जब मरदमशुमारी की गई है तो उस मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी बिलउमूम और बिलखुसूस कराची की आबादी को गलत गिना गया है। रियासत के आदाद-ओ-शुमार कराची की आबादी को 1,40,00,000 लोग बता रहे हैं, जो कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। उस रिजल्ट को अभी तक कबूल नहीं किया गया था। ये हुकूमत अभी 2 लोगों का भी हुकूमत से की बेंचों से हटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज इससे कमजोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कोई आई नहीं है। उस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए अपने वजारतों के मजे के लिए और वहां पर सिर्फ अवाम को धूल की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एतराजी बयान लिखकर डाल दिया, जिससे आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी एतराजी बयान से कभी भी कोई काम रुका नहीं है। और वही हुआ